Hello friends, this is Akshita, your educator. I welcome you all to Teaching Exams by Global Online. So here we have come up with a Maths Paper 1 series in which we will be discussing CTET 2022 Maths Paper 1 syllabus. So in this lecture 1 we will be studying about the topic that is the number system. Okay, before moving on to the course and the lecture, let me explain you about the complete course which has been launched for the CTET 2022 examination. In this particular exam, as we know that we have two papers, that is paper 1 and paper 2. For paper 1, the course which has been launched contain full syllabus theory lectures, okay, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes, and the course fees is just of 2000 rupees. So basically you go and download the app and contact us on the given number if you want to enroll the course. In paper 2, again for the paper 2 complete course has been launched. Again it contains the features like full syllabus theory lectures, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes. Course fees is again 2000 rupees. Sticking to the point, if you go through this course, I will make sure that you will score maximum marks in the exam. So if you're opting for paper 1 and paper 2 both, again the course has been launched here for full syllabus theory lectures, multiple MCQs, mock test, full syllabus notes, and the course fees is just of 3000 rupees. So download the app and contact us on the given WhatsApp number. So basically you have to go on the Play Store and search for the app Global Online, and you will see such kind of interface in which we have to click on the store icon. Okay, after that you go on the courses page. There is a search tab where you have to search regarding the entrance examination. There are actually different entrance examination for which the Global Online platform has provided different courses like NTA UGC NET set examination. So basically this is a platform where you just can prepare for many entrance examination. So in this particular lecture we will be discussing about maths paper 1 topics. Okay, so the syllabus which has been described in the given bulletin, the topics covered here will be, now paper 1 is having the 4th topic, that is mathematics and science. In mathematics, the topics that will be covered over here is number system. So the syllabus, like if we begin, basically we will be discussing about the number system because this is given in the syllabus directly. We will be discussing first the syllabus. Okay, number system के अंदर knowing our numbers, okay, knowing our numbers or playing with the numbers. Here we'll be discussing about the whole numbers, okay, negative numbers and integers, factors. Second topic will be algebra. Okay, in algebra what we will be discussing, like introduction to the algebra, ratio and proportion, like different topics. In geometry we will be discussing about the basic geometrical ideas like in 2Ds, okay, understanding elementary shapes in 2D and 3D. In symmetry we will be discussing about the reflection. In again geometry we will be discussing about the construction, that is using the straight edge, scale, protractor and compasses, and mensuration and data handling. So this is all about the mathematics which will be carrying, like so basically maths and science, this both the topics contain 60 marks. So 60 marks के questions आएंगे, 60 questions आएंगे. So basically 60 questions carrying the 60 marks will be asked over here. So इसमें से जो mathematics रहेगा, mathematics will be for 30 marks. Okay, mathematics will be for 30 marks and 30 marks science. And in 30 marks basically 15 questions, sorry 20 questions will be from maths. Okay, 20 questions, 20 marks carrying is from the maths. जो नंबर वाले questions आएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में से इसमें से आएंगे ऑलमोस्ट 20 questions carrying 20 marks. एंड मैथ्स एंड द पेडागोजिकल इश्यूज जो बताए उसमें से आएंगे 10 questions carrying 10 marks. So basically when we go through the syllabus we'll understand that टॉपिक 4 में, पेपर 1 में जो टॉपिक 4 दिया है उसमें क्या मेंशन किया है, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड साइंस. ओके, उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट 4 में क्या मेंशन किया है, मैथमेटिक्स एंड साइंस. सो बोथ द सब्जेक्ट्स कैरिंग 60 मार्क्स. सो मैथमेटिक्स एंड साइंस में से ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 60 मार्क्स. इन दिस मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे और साइंस में 30 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स, इन दिस विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैथ्स एंड pedagogical issues. Okay,
So this will be topic we'll be discussing over here, okay, in maths. So 30 questions में से almost 20 questions जो है ये maths वाले topic से आएंगे. pedagogical issues में से almost कितने questions आएंगे? It will be like 10 questions pedagogical issues में से आएंगे. So this will be the all marking system, marking criteria. So in numbers, as I told you, now if you go for complete math syllabus over here, in math syllabus what we'll be discussing? Numbers, okay, numbers, place value, face value, classification of the numbers, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूमरेशन सिस्टम्स जो है, ठीक है, नंबर सिस्टम, वो देखेंगे हम नंबर ये टॉपिक में. सेकेंड जो टॉपिक आएगा इसमें दैट विल बी HCF एंड LCM, ओके, HCF एंड LCM ये वाला भी टॉपिक डिस्कस करेंगे. इसमें हम देखेंगे और ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस, लाइक मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ठीक है. फिर देखेंगे हम टाइम इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे, ओके. मेंसुरेशन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन, ओके. अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स देखेंगे हम, ठीक है. डेटा हैंडलिंग देखेंगे, डेटा हैंडलिंग, ओके. और क्या, मेंसुरेशन आई हैव मेंशन्ड, राइट. मेजरमेंट्स वाला टॉपिक देखेंगे. एंड ऑल्सो मेनी रीजनिंग टॉपिक्स, लाइक हम बोल सकते क्लॉक, कैलेंडर, अभी कुछ समय से लाइक नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके. सीरीज क्वेश्चंस, ओके. विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रैंकिंग वाले टॉपिक्स, सिमेट्री वाले टॉपिक्स, ओके. व्हाट इज लेफ्ट अगेन? डेटा हैंडलिंग विल बी डिस्कस्ड. I have mentioned it, right. Geometrical shapes, different geometrical shapes will be discussed over here. मैंने जैसे बोला मेंसुरेशन, ठीक है. मेंसुरेशन के अंदर area, perimeter, volume, these topics will be discussed, okay. So these are all the stuffs and the syllabus points that will be discussing in the math syllabus. अभी ये math syllabus में से almost यहाँ से मैंने बोला आपको कि ये पूरे topics जो है हमको discuss करने, ठीक है, one by one. और ये upcoming lectures में इस complete series में जो है हम ये पूरे topics in detail discuss करेंगे, okay. So in this particular lecture now, in today's lecture we'll be discussing about the number system, okay. how we like divide the numbers, okay. numbers जो है किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. हाउ द नंबर्स आर क्लासिफाइड. लेट मी चेंज द color of the pen, okay. Now how numbers are classified is the first topic. How are the numbers classified? बेसिकली नंबर्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते. एक रियल नंबर्स एंड अनदर वन इज द इमेजिनरी नंबर. So numbers are basically classified into two categories. One is the real number and another one is the imaginary number. So what is real number and what are the imaginary numbers? Let us discuss in detail now, okay. Now real number is a number. Now for understanding this, imagine a line, okay, a number line. नंबर लाइन क्या रहती है? सेंटर में ज़ीरो रहता है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ एन ओरिजिन ज़ीरो. इसके राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं लाइक 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ओके, इस तरीके से. एंड इट्स लेफ्ट साइड कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स like -1, -2, -3, इस तरीके से, right. So this number line is having the origin 0 on which positive side is having positive numbers and negative side consists of the negative numbers. In this way it is represented, okay, in the definite scale. So real number is a line. Real number line is actually a horizontal line. A real number line is an horizontal line with
arrow on the both the side, it consists of 0 as an origin, and on its right side we consist of the positive numbers, and on the left side it consists of the negative number. So this is the definite scale provided here. Now in real numbers we'll be discussing about the natural number, whole number, okay, in detail now, one by one. So basically, what is the number line? Real number line. Real number line is a line in which 0 is considered to be the origin or the center of the line, on which the next positive numbers are represented on the right side and the negative numbers are represented on the left side in this way. So this is called the real number line. In this way this is represented, like look at the diagram. This is the origin, these are the positive numbers on the right and these are the negative numbers on the left side. अभी इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको इजी मेथड में बताऊंगी. I इज आयोटा, ओके. अभी ये क्या है देखते हैं. जब हम I स्क्वायर करते हैं इट मीन्स -1, ओके. दैट इज I into I is equals to -1, where I is what? It is an imaginary number. तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर डिस्क्राइब क्या कर रहा है, देखिए. I square is equals to -1, I into I is equals to -1, where I is the imaginary number. So basically if we go I square is equals to 1, I square is equals to -1, right? So if we take I is equals to what then? Under root of -1. जब कभी ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, उस नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस आयोटा को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी नंबर. I is equals to iota is the representation, okay. I square is equals to -1, where I is imaginary number. So basically I क्या आएगा? Under root of -1, okay. Once again I'll explain you over here. What are we talking about? Okay, I square is equals to -1, where I is what? इसको क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे, ठीक है. I is equals to what? I is imaginary number. I क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है. तो I को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? इज इक्वल्स टू -1. सो बेसिकली इमेजिनरी नंबर क्या है? अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर. फॉर एग्जाम्पल -3, अंडर रूट ऑफ -4, ओके, root of -7. So this is what the imaginary number is described as, okay. It is a number that when squared has a negative result. स्क्वायर करने के बाद अगर किसी नंबर का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. इसके डिटेल में नहीं जाना है हमें, एक्चुअली रियल नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो रियल नंबर्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे आज? हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है. सो बेसिकली विल बी स्टार्टिंग विद द नेचुरल नंबर्स. अभी नेचुरल नंबर्स क्या है वो पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे हमें एक पॉइंट नोट डाउन करना है. जब कभी मैं हर एक रियल नंबर पढ़ाऊँगी या किसी भी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करूँगी, हम हर एक टॉपिक के अंडर ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं? एक्चुअली दीज आर द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्मॉलेस्ट नंबर जो है यहाँ पे 1 है. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर्स. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, ये पूरे नंबर्स क्या रहते हैं? नेचुरल नंबर्स रहते हैं. हम बेसिकली इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है. दीज आर द काउंटिंग नंबर्स दैट इंक्लूड द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो बेसिकली क्वेश्चन अभी यहाँ से क्या क्या आ सकता है हमें पता होना चाहिए. नेचुरल नंबर्स, उसमें से क्वेश्चन डिराइव क्या हो सकता है? दैट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है. सो अभी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा आएगा आपको कि स्मॉलेस्ट
नेचुरल नंबर कौन सा है? एज आई टोल्ड यू, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होएगा? 1 से, चलेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इन्फिनिटी तक जाएगा. सो बेसिकली स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या रहेगा? 1. ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. ओके, ऑप्शन में दिया जाएगा 0. एक्चुअली 0 इज नॉट एन नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, और हम बोल सकते हैं किसी, अभी फॉर एग्जांपल -1 है, इज दिस माइनस नंबर्स, और माइनस नंबर्स जो है माइनस हम बोल सकते हैं एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है, या फ्रैक्शनल नंबर्स जो बोल सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आ सकते. सो बेसिकली नेचुरल नंबर के अंदर हमें 3-4 चीज़ें दिमाग में रखनी है. पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं आएगा. ठीक है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे. ओके, नेक्स्टली किसी भी कोई भी फ्रैक्शनल नंबर अगर दिया जाएगा आपको, फ्रैक्शनल नंबर्स, तो वो जो है नेचुरल नंबर्स के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर्स. और क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है पूछ सकते हैं वो, और नेगेटिव ऑप्शन में एक आधा नेगेटिव नंबर देंगे और उसमें से बोल सकते हैं कि इसमें से नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है. सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं रहेंगे और फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेंगे. नाउ मूविंग टू द होल नंबर, द नंबर दैट इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर एंड 0. अभी नेचुरल नंबर, ओके, इसके अंदर 0 ऐड करवा दो. ठीक है, पूरे नेचुरल नंबर्स और उसके अंदर 0 ले लिया हमने, तो व्हाट इज द व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स द होल नंबर. पूरे नेचुरल नंबर्स और उसके अंदर 0 ऐड कर दिया. ठीक है, ऐड कर दिया मतलब क्या? 0 to infinity इज होल नंबर. ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 to infinity is what? whole number. It is a whole number. 0, 1 यहाँ पे नहीं लिया. 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity is what? whole number. So basically natural number और whole number में क्या डिफरेंस है? natural number 1 से स्टार्ट होते हैं, तो whole number कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से. अभी बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है whole number से? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आएगा? 0. ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द समेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. व्हाट क्वेश्चन कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. ओके, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सो इन दोनों का समेशन भी पूछ सकते हैं. ओके, बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0. उन दोनों का समेशन आएगा 1. सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ इंटेजर्स. अभी इंटेजर्स क्या है वो पढ़ेंगे. अभी इंटेजर्स क्या है? एक होल नंबर है जो पॉजिटिव भी रह सकते हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं, 0 भी रह सकते हैं. पूरे नंबर लाइन के ऊपर जितने भी चीज़ें आ रही है वो क्या है? इंटेजर. नंबर लाइन मैंने बताया. ठीक है, 0 सेंटर रहेगा इसका, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ओके, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स. इसके अंदर जो सेंटर है 0. ओके, सो 0 इज अगेन व्हाट? अ इंटेजर. ठीक है, 0 भी क्या है? एक इंटेजर है. 0 is integer. All the negative numbers are integer. All the positive numbers are integer. So basically integer क्या है? एक whole number है, fractional number नहीं है. It is not a fractional number. It's simply a whole number, a complete number that is positive, negative और 0. एग्जाम्पल्स दिए -5, 1, 5, 8, 97, कोई भी नंबर. ठीक है, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, 0 to infinity, 0 to ये नेगेटिव साइड पूरी और 0 इंक्लूडेड पूरे क्या है? इंटेजर्स है. नाउ दिस इज द इंटेजर नंबर लाइन गिवन हियर इन द फिगर. पॉजिटिव इंटेजर्स, नेगेटिव इंटेजर्स, 0 इंक्लूडेड भी क्या है? इंटेजर में आएगा. ठीक है ना. सो बेसिकली अभी यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर, 3 टॉपिक पढ़ा है हमने. सब टॉपिक्स इसके अंदर होल नंबर हमने देखा. 0 to इन्फिनिटी जाने वाले पूरे नंबर्स मतलब होल नंबर्स. 1 to इन्फिनिटी जाने वाला सभी चीज़ें मतलब नेचुरल नंबर्स. इंटेजर मतलब क्या? 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है. दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. सो बेसिकली अभी पूरे
आगे के टॉपिक पे कॉम्पोजिट नंबर. नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिट नंबर? कॉम्पोजिट नंबर इन मैथमेटिक्स आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. इफ इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट नंबर. एक्चुअली कॉम्पोजिट नंबर स्टडी करने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है ये देखेंगे, फिर आएंगे कॉम्पोजिट नंबर पे. ठीक है, अभी प्राइम नंबर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स आर फॉर्म्ड, ओनली 2 पॉसिबल फैक्टर्स आर फॉर्म्ड इन द प्राइम नंबर्स. इफ यू गो फॉर नंबर 2, ओके, 2 इज अ नंबर जो 1 के टेबल में आएगा और खुद 2 के टेबल में आएगा. ठीक है, उसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा. 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में तो आएगा 3 के, और 1 के भी टेबल में आएगा. सो बेसिकली अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. खुद से डिवाइड हो सके या नंबर 1 से डिवाइड हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे. इट्स डिवाइडेड बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. इसको सिंपली अगर डिफाइन करना हो देन प्राइम नंबर इज हैविंग, प्राइम नंबर इज नंबर which has possibly only 2 factors. यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइटेड है? 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर. अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स अगर किसी नंबर के गिर रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे. एक ऐसा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड द नंबर 1, only by itself and the number 1 is called as a prime number. अभी प्राइम नंबर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे हम. ठीक है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिराइव हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, okay, only even prime number. The questions that can be asked from prime number is only even prime number. कौन सा ये पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 किस तरीके से प्राइम नंबर आए. प्राइम नंबर बोले तो क्या है? इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 1. Okay, only 2 factors are possible over here in prime number. So 2 is the number which is divided by 2 itself and the number 1. So here 2 is the only even prime number. Okay, it is the only even prime number. ये question directly आ सकता है. ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से? फॉर एग्जाम्पल वो हमें बोल सकते हैं कि लाइक 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स हैं. ये हमें फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना तो आप ऑप्शन की तरफ डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं. लाइक क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से? 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, आंसर इसका है 15. 1 से 50 में ऑलमोस्ट 15 प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं. 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स है? 25 प्राइम नंबर्स है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइम नंबर. ठीक है, और इसमें से और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स. कितने सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. प्राइम नंबर्स कितने अभी देखना? 2, 3, 5, 7, 11. सो बेसिकली इसमें से डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं कि 4 ऐसे प्राइम नंबर्स है जो सिंगल डिजिट है. सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7. 7 के आगे 11 स्टार्ट हो रहा है. सो बेसिकली 2, 3, 5, 7 आर द सिंगल डिजिट प्राइम नंबर. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज 4. ओके, 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर. क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? ओनली इवन प्राइम नंबर. मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी. ठीक है, ये क्वेश्चन और चौथा कौन सा आ सकता है? ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2.
2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर्स है, 15 है. 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर्स है. सिंगल डिजिट प्राइम नंबर इज 4. हाउ मच सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर? देयर आर 4 सिंगल डिजिट, दैट इज 2, 3, 5 and 7, and even prime number is 2. Basically these are the prime numbers that I have given mentioned here from 1 to 100. okay, इसमें आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. सो ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं. मैंने बोला आपको 25 प्राइम नंबर्स, और 1 से 50 में कितने, 15 प्राइम नंबर्स. सो दिस इज द फैक्चुअल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. अभी इवन नंबर क्या, ऑड नंबर क्या देखते हैं. अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, which is divisible by 2, we can say it is what, even number. एक ऐसा नंबर है जो 2 से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. उसका आंसर डिवाइड करने के बाद अगर होल नंबर आ रहा है तो अब हम क्या बोलेंगे, उसको इवन नंबर बोलेंगे, कंप्लीट नंबर. अ होल नंबर दैट इज डिविजिबल, दैट इज एबल टू डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इक्वल होल नंबर्स इज कॉल्ड एज इवन नंबर. ठीक है, इसको बोल क्या सकते हैं हम, जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका एक कंप्लीट होल नंबर जा रहा है तो हम उसको इवन नंबर बोलेंगे. एंड दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑड नंबर क्या है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते नहीं है, अगर डिवाइड करने के बाद 2 सेपरेट इंटीजर्स इवनली फॉर्म अगर हो नहीं रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स. कहीं ना कहीं उसका कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको ऑड नंबर बोलेंगे. ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर. इसमें अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसके अंदर क्या रहता है, 0, 2, 4, 6, 8. दिस ऑल आर द इवन नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे 1, 3, 5, 7, these are the odd numbers. So this is the simple topic. इसमें से अभी क्या क्वेश्चन आ सकता है, अभी इसमें से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है वो देखेंगे हम. ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर में से अभी एक थिंग है, एक फैक्चुअल थिंग है कि जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं. ठीक है, 3 इज़ एन ऑड नंबर, 3 इज़ अगेन एन ऑड नंबर. जब हम दोनों का समेशन लेते हैं तब हमें क्या आएगा, 6. एंड 6 इज़ व्हाट, एन इवन नंबर. सो बेसिकली व्हेन 2 ऑड नंबर्स का हम सम करते हैं तब क्या आएगा, इट इज़ कमिंग इवन नंबर. और जब 2 इवन नंबर्स का हम, 2 इज़ एन इवन नंबर, 4 इज़ अगेन एन इवन नंबर. ठीक है, इवन नंबर्स का यहाँ पे समेशन करने के बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर. सो बेसिकली व्हाट द थिंग इज गेटिंग डिराइव्ड आउट ऑफ द सीन, दैट व्हेन 2 इवन नंबर्स हम ऐड करते हैं तब हमें इवन नंबर मिलेगा, और 2 ऑड नंबर्स जो है ऐड करेंगे तब भी इवन मिलेगा. ऑड नंबर्स ऐड करो इवन मिलेगा, इवन नंबर्स ऐड करो इवन मिलेगा. ठीक है, दिस इज द थिंग दैट इज टू बी नोटेड. नाउ रैशनल एंड इरैशनल नंबर. इसके साथ आगे बढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक पीछे रह गया, दैट वाज द होल नंबर, जो हम प्राइम नंबर के बात करेंगे ऐसा मैंने बोला था. तो बेसिकली प्राइम नंबर में हमने क्या देखा था कि ऐसा नंबर है जहाँ पे सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, जहाँ पे 2 फैक्टर्स ही पॉसिबल है, एक खुद का और डिवाइड बाय 1. व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इट इज़ कॉल्ड एज प्राइम नंबर. हमने बोला था जहाँ पे 2 फैक्टर्स ही पॉसिबल है. अभी कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, जहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल है. ठीक है, नंबर्स इन विच मोर देन 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगी यहाँ पे 4, 16. ठीक है, अभी 4 किस किस नंबर के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा. ठीक है, फिर किस टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा. ठीक है, 4 1s are 4, 2 2s are 4, 1 4s are 4. सो बेसिकली यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, राइट. 16 के अभी कितने पॉसिबल फैक्टर्स है वो देखेंगे हम. 16 इज डिवाइडेड बाय 1, राइट. 1 के टेबल में 16 आएगा. ओके, 2 के टेबल में 16 आएगा, 2 8s are 16. फिर 3 के नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 4s are 16. ओके, फिर किस टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा. ठीक है, 8 2s are 16.
और फिर 16 के टेबल में आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कितने फैक्टर्स पॉसिबल हो रहे हैं, 1 2 3 4। सो बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। जब कभी एक नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अभी कंपोजिट नंबर में से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखेंगे हम, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से एक बार देखेंगे पहले तो। अभी देखना 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी 2 के कितने फैक्टर्स गिरेंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स गिरेंगे। सो बेसिकली 2 इज़ नॉट एन कंपोजिट नंबर, ओके। 3 के कितने फैक्टर्स गिर रहे देखेंगे, 3 और 1। बेसिकली यहाँ पे 2 फैक्टर्स ही गिर रहे, सो 3 इज़ अगेन नॉट अ कंपोजिट नंबर, ओके। 4 के कितने फैक्टर्स गिर रहे, 4 1 के टेबल में आएगा, 4 2 के टेबल में आएगा, और 4 किस टेबल में आएगा, और 4 खुद के टेबल में आएगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कितने फैक्टर्स गिर रहे, 3 फैक्टर्स गिर रहे। सो बेसिकली दिस इज़ द कंपोजिट नंबर। सो अगर हम नंबर्स में देखेंगे, ठीक है, नंबर्स में देखेंगे तो वेरी फर्स्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 रहेगा, ठीक है। सो इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, लेट मी रीड दिस आउट वंस। इसमें से क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आंसर इज 4। 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 8 आएगा। ये ट्राई करके देखिए, ठीक है। इन दिस वे अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बहुत ही बेसिक लग रही होगी चीज़ें, बट आई फाइंड मेनी स्टूडेंट्स बेसिकली आई कैन से लाइक मी, बिकॉज दिस स्टूडेंट्स हैव बिन उनके लाइफ में एक ह्यूज गैप आ गया है एकेडमिक्स में। लाइक 10th के अंदर ही उनका मैथ्स छूट जाता है, फिर बाद में मैथ्स उनको एकेडमिक्स में पसंद भी नहीं आता था। ऐसे भी स्टूडेंट्स है स्कूल टाइम में। तो ये ह्यूज गैप जो है कवर अप करने के लिए मैं इतना बेसिक क्लासेस ले रही हूँ, और यही टॉपिक्स कवर अप होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर ये आपको बहुत ईजी लग रहा है तो प्लीज़ आप फॉलो ना कीजिए, आप किसी और मतलब पेपर की स्टडी कीजिए। बट दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट द थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अगर वो आपको डील करना होगा तो ये आपके लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द सीरीज़। सो इस कंपोजिट नंबर के ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो रहेगा 4 रहेगा, और ये जो है इसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपोजिट नंबर। फिर हम देखेंगे इसके अंदर ये वाला एक टॉपिक, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या रहता है, एक फ्रैक्शन है, हम बोल सकते हैं इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ 2 इंटेजर्स। 2 अलग अलग इंटेजर्स का हम रेशो लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया p/q। सो p एक इंटेजर है, q जो है एक नॉन ज़ीरो इंटेजर है। मतलब एनी नंबर, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 4 डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट एन इंटेजर, so it is not a rational number, sorry it's not a rational number। so 0 नॉन ज़ीरो इंटेजर रहना चाहिए, ठीक है। p डिवाइडेड बाय q, p एक इंटेजर है, ठीक है, q एक नॉन ज़ीरो इंटेजर रहना चाहिए। तो ये क्या फॉर्म करेगा, रैशनल नंबर। इट इज़ अ नंबर जो रेशो के अंदर 2 इंटेजर्स के रेशो के अंदर जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो रहेगा 0 नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटेजर, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या रहते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के फॉर्म में जो है रैशनल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इरेशनल नंबर्स हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टूडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने काफ़ी टॉपिक्स जो है रिलेटेड टू द सिलेबस, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था नंबर सिस्टम वो पूरी कंप्लीट किए। इसके अंदर हमने क्या देखा, किस तरीके से हम नंबर को क्लासीफाई करते हैं इन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या रहता है हमने देखा, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या रहता है, जो कुछ भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडिंग द ज़ीरो के साइड पे पूरे पॉजिटिव नंबर्स, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पूरे नेगेटिव नंबर्स, ये पूरा क्या हो जाता है, रियल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। जो इमेजिनरी नंबर्स रहते हैं हमने बोला कि i² इज इक्वल्स टू -i। जो कुछ भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं सिलेबस रिलेटेड। फिर हमने देखा रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस क्या आ सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज़ 1, ठीक है। इसके अंदर 0 नहीं आएगा,
किसी भी प्रकार का नेगेटिव नंबर नहीं आएगा और फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। होल नंबर के अंदर हमने क्या देखा, नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड मूविंग टू द इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, हमने देखा कि जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर की समेशन बताओ। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0, 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमने देखा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इंटेजर्स देखा, इंटेजर्स क्या होते हैं, इंटेजर्स मतलब एक होल नंबर दैट इज़ इंक्लूडिंग द 0, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स, पूरे नेगेटिव पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग द 0 पूरे किस में आ जाएगा, इंटेजर्स में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो नॉन इंटेजर्स है तो वो भी देखिए हमने। ठीक है, जो पॉइंट्स में आ रहे, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस आर द नॉन इंटेजर्स। फिर हमने देखा इंटेजर नंबर लाइन, इंटेजर नंबर लाइन में भी ये फिगर फॉर्म में हमने देखा। ठीक है, इस तरीके से कॉम्पोजिट नंबर देखा, कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स गिर रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 4 है। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। फिर देखा प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स गिरेंगे वो दैट इज द प्राइम नंबर। सो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, ये भी आ सकता है, दैट इज 2। उसके अंदर और एक क्वेश्चन आएगा, दी ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, दैट इज़ 2। 1 से 50 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स है, 1 से 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स कितने हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि 1 से 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स है, पूरी लिस्ट आउट दी, ये एक बार दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, इवन नंबर्स के अंदर हमने देखा कि जो नंबर्स ईजिली डिविजिबल बाय 2 है उसको हम इवन नंबर बोलेंगे, और ऑड नंबर जो डिवाइडेड बाय 2 है नहीं। सो इसके अंदर हमने देखा कि इवन नंबर का समेशन करेंगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर का जब हम समेशन करेंगे तब भी इवन आएगा। रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी हमने देखा। इस तरीके से दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए वो एग्जाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर का कुछ नहीं आएंगे। आई विल मेक श्योर इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज़ तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर रहा तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और आपका स्कोर जो रहेगा 20 क्वेश्चन, जितने भी 30 क्वेश्चन पेडागोजी का भी हम कवर करेंगे, पूरा मैक्सिमम स्कोर आउट ऑफ स्कोर करने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिस वाज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। एंड फॉर एनरोलिंग द कोर्स जस्ट कॉन्टैक्ट अस on the given WhatsApp number and download the Global Online app. So stay tuned for the next lecture. Thank you.